Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. We are in the midst of the 5th chapter. We have completed 5.18, but we will just repeat the 18th verse of the 5th chapter to get the continuity of the class. Yes, bro. What did you say? Yeah, please read it again. Okay. The humble sages, by the virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and a gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater outcast. Yes. Please read the next verse also, then you will get a continuity. Those whose minds are those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman. So what does this mean? It's not Brahman. Brahman. See, please understand this. What Lord is trying to say. Lord is saying is first and foremost develop that eyesight. वो नजरिया हिंदी में बोलते हैं नजरिया बोलते हैं ना वो नजरिया डेवलप दैट कॉन्शियसनेस उस तरीके से देखो ताकि आपको हर चीज एक जैसा दिखे और वो चीज कब दिखेगा जब आप ज्ञान में रहो इफ यू आर इन नॉलेज देन यू आर एबल टू सी एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस you know going to someone passes away you go there how do you feel it's all negativity everyone crying recently I had to go to one of my building one lady passed away in our building so it's all a hue and cry I went there but I could see things in a different perspective altogether पूरी दूसरी नजरिए से मैंने देखा 2-3 जन बैठ के बात कर जिंदगी का क्या भरोसा कभी भी कुछ भी हो सकता एंड दिस वाज बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट द सिनेरियो वाज डिफरेंट जिंदगी का क्या भरोसा अपने को भी संभालना पड़ेगा अपना तबियत आई वाज लिसनिंग फुल्ली एंड देन सडनली आफ्टर दैट 4 minutes lull of 2 minutes मार्केट में શું લાગે છે What is the point? What is the market situation? What's the mindset going on over there? The body is to be brought down from the house to the thing. I'm in the courtyard of our building and the body ऊपर से लाना है and एक आदमी दूसरे को पूछ रहा है आ टाइम पे 400 बात थी जैसे it will be 400 crores. Is it having any relevance? And once the body was brought down, the same person circumambulating the body, very piously is circumambulating. What mood are you in? Are you in this mood or in that mood? To specify karo. When you are not in knowledge, you will always be in a confused state. You cannot see things as they are. जो चीज जैसे है आपको वो चीज नहीं दिखेगी अज्ञानता के वश बट वही आप जब ज्ञान में रहोगे यू विल बी एबल टू सी द थिंग्स एंड दैट इज व्हाट इज लॉर्ड ट्राइंग टू से ओवर हियर दोज हुज माइंड्स आर एस्टैब्लिश्ड इन सेमनेस एंड इक्वालिटी हैव ऑलरेडी कॉन्कर्ड द कंडीशन ऑफ बर्थ एंड डेथ उनके लिए जन्म क्या मृत्यु क्या सब एक समान कितने लोग यहां मोक्ष चाहते हैं इज देयर एनीवन वांट्स मोक्ष 1 2 3 4 अच्छा कितने लोग भगवान के पास जाना चाहते मोक्ष वाले उधर भी जाओगे कोई भी एक या तो चित्त या तो पट चित्त भी मेरा पट में नहीं चलेगा दैट्स नॉट मोक्ष लोग अक्सर कंफ्यूजन वही खाते हैं कि मोक्ष और गोइंग बैक टू गॉड इज द सेम नो मोक्ष और इसमें अंतर क्या है एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया एक बार ना लड्डू को कूटते हैं वो बिफोर द स्टेज ऑफ लड्डू शुगर स्टेज टू लड्डू का शेड लड्डू क्या गुड़ के शेड स्टेज में जाने के पहले उसको कूटा जाता है तो कूट करते तो एक चीटी के कूटते वक्त it starts to sparkle out a little
तो थोड़ा बहुत बाहर गिर रहा था, उड़ के गिर रहा था, तो चींटी ने जाके उसको खाया। वाह, बड़ा प्यारा है, बड़ा मीठा है। ये अगर इतना छोटा सा टुकड़ा इतना मीठा है, अगर मैं घुस जाऊं अंदर, मीठे में ही तैरते रहूंगा, मतलब इट बी एन ओशन ऑफ स्वीटनेस। इमीडिएटली द एंट जंप, वो चींटी अंदर घुसी, एंड द मिनट द एंट ठक ठुक ठक, इट बिकेम वन विद द sugar or the good, whatever you call it. So what does this mean? What happened to it? I mean, don't see that, oh, it passed away, or don't see that. The moral what we get, हम जो चीज समझते हैं इसमें, क्या समझ रहे हैं हम? कि जो भगवान के साथ लीन होने का बात करता ना, वो ये परिस्थिति में, भगवान के साथ लीन होना बोला तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ जीरो। आप खुशी में भी जीरो, गम में भी जीरो। यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सैड, दोनों इज जीरो। Whereas one who serves God, जो भगवान की सेवा करता है, भगवान के धाम पहुंच जाता है, वो क्या होता है? वो खुश। That is like eating a fragment of the sugar, the sweetness, sugar का fragment, वो बेहतर है than rather than eating the entire, पूरा गुड़ के चक्कर में घुसे और पूरा गड़बड़ हो जाओ। Yes, please sit. So one has to understand कि मुक्ति और इसमें अंतर है। Don't take मुक्ति and going back to Godhead is the same. It's two different things. That is why Prabhupada calls mukti as, I mean, that is Sayuji Mukti as spiritual suicide. No, this is spiritual suicide. ये भी suicide ही था ना, कुट क्या हुआ? Nothing happened. So that is very important, that one is in knowledge, he is in conquer the condition of birth and death, and he is flawless like Brahman, and thus he is always situated in Brahman. वो ब्रह्म मतलब क्या है? भगवान के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। He will be always like God. So every human being can become godly, but can never become God. Let this be very clear. Many people have got this misconception. बहुत लोगों के अंदर ये सोच है, हम भी भगवान है, मैं भी नारायण, वो भी नारायण, बस एक बार मृत्यु हो गया, मेरे ऊपर के माया झड़ गया, तो मैं नारायण, वो भी नारायण, एक हो जाएंगे। हम कभी एक नहीं होंगे, हम अणु ही रहेंगे, वो विभू रहेगा। He will always be big and we will be small. Yes, we will be one in. That is why he is saying you are situated in Brahman, but you don't become. You are situated in Brahman, मतलब आप उनकी तरह सोच रहे हो, उनके साथ रह रहे हो, but you don't become God. This is what you understand. Please read the next verse. न पश्येत् प्रियं प्राप्य, न उद्विजेते प्राप्य च प्रियः, सिद्धिर्बुद्धिर् असमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मस्थितः. This is the second stage or the higher understanding of how you are in a godly state or you are in a spiritual platform. This is what you understand. Please read the translation. A person who neither rejoices upon achieving something pleasant, nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the signs of God, is really situated in class 10. न प्राप्येत् प्रियं न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य, न उद्विजेते अप्रिय सिद्धिर्बुद्धिर् असमूढो. These are the two qualities which are very important. And what are the conditions for that? कभी आपको आपका प्रिय चीज मिल गया और कभी आपको आपका प्रिय चीज नहीं मिला. You are not getting what you wanted, what you desired. Because now in the next verse, Lord is going to say what is priya and what is apriya. He is going to explain more further in the coming few verses. So please understand. One who doesn't get elated, मुझे मेरा choice का चीज मिल गया, मेरा choice of whatever I desired, I got it. We are all running behind that. हम सब चाहते हैं कि हमारा जो चाहते हैं वही हमको प्राप्त हो, but जरूरी नहीं. जो खुश नहीं होता है प्राप्त करने पे, न उद्विजेते, मतलब बोलते हैं ना, तिल मिला जाता है, बोलते हैं ना हम लोग, यार, it becomes desperate or depression, agitated, depressed, जो भी हो.
प्राप्य अप्रिय, जो उसको अच्छा नहीं है वो चीज मिलने पे वो एजुकेट नहीं होना चाहिए। स्थिर बुद्धि, व्हाट इज स्थिर बुद्धि? स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं? यस, हु इज स्थिर बुद्धि? Who uses intelligence to know what is right and what is wrong. Who doesn't get his mind wavered with respect to the three modes of nature and as per his sense pleasures. इन दोनों चीजों से जो स्थिर रहता है उसको स्थिर बुद्धि कहा गया है। और असमूढ़ो, विदाउट एनी इल्यूजन और डिल्यूजन। मूढ़ा, समूढ़ा, असमूढ़ा, तीन अर्थ है। मूढ़ा मीन्स फूल, समूढ़ा मीन्स कंप्लीटली फूल, असमूढ़ा वन हु इज नॉट डिल्यूटेड। ब्रह्मविद, ही नोस ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब ही नोस गॉड। एंड ब्रह्म स्थितः, वो ब्रह्म में स्थित है, यानी कि भक्ति में पूरी तरह से सिचुएटेड है वो। सो कैन एनीवन गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस? मैं कितना बार मैंने एग्जाम्पल दिया है। लेट मी सी हु रिमेंबर्स। आई ऑलवेज गिव वन स्टोरी। वो हु रिमेंबर्स द स्टोरी एट दिस? लेट मी सी, मेमोरी टेस्ट। कितने लोग ने बादाम खाया? हाँ, Sage. forget. हाँ, you tell the matter. I'll tell you the news. The sage who goes to the prostitute comes to that sage. No, that doesn't apply here. Probably the man and a horse. Yes, good. You're eating a lot of almonds. The conclusion is you're eating a lot of almonds. So, first and foremost, let me repeat the story once again. एक बार एक आदमी था, उसको अचानक उसके खेत में कोई जंगली घोड़ा दौड़ के आ गया। तो सब गांव वालों ने बोला, अरे वाह, घोड़ा मिल गया आपको फ्री में, बिना खरीदे, आपकी तो निकल पड़ी, वेरी लकी, आपका एकदम बढ़िया हो गया, तो आपका तो भला हो गया। तो आदमी क्या बोला, भला क्या बुरा क्या सब राम जाने, सब प्रभु की इच्छा, सब प्रभु की इच्छा। थोड़ा दिन घोड़ा को पकड़ के रखने के बाद उनका उसका लड़का उसको क्या बोलते हैं, टेमिंग द हॉर्स बोलते हैं, यू वांट टू टेम द हॉर्स। तो घोड़े पर चढ़ के उसको लाइक डोमेस्टिकेट कर रहा था, जंगली घोड़ा था। तो ही वाज ट्राइंग दैट। आफ्टर कपल ऑफ अटेम्प्ट्स लड़का, घोड़े ने जोर से लड़के को लात मारा, गिरा और उसका हाथ टूट गया, हाथ पैर दोनों टूट गया। पट्टी बांध के उसको बिठा दिया। तो सब गांव वाले आए, हाय हाय, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, आपका लड़के का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अभी 6 महीना ऐसा लेटा रहेगा, क्या होगा इसका? वापस वो आदमी ने बोला, भला क्या बुरा क्या सब प्रभु इच्छा, राम की इच्छा है, मुझे कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद उस राज्य में पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। तो फिर तुरंत राजा ने बोला, जितने भी हट्टे कट्टे नौजवान है सबको पकड़ के ले आओ, युद्ध के लिए चाहिए। तो गांव के सभी लड़कों को लेके गए युद्ध के लिए। ये बेचारा इसका तो हाथ पैर टूटा है, तो लेटा हुआ था। तुरंत लोग आए, कहा आपका तो अच्छा हो गया, आपका अच्छा हो गया, आपका लड़के का हाथ पैर टूट गया, देखो वो युद्ध में तो नहीं जाएगा, हमारा बेटा देखो गया युद्ध में, आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं। तो वापस उसने बोला, अच्छा क्या बुरा क्या सब प्रभु की इच्छा, सब राम जाने। सो दिस इज व्हाट इज अ पर्सन हु इज सिचुएटेड इन इक्वालिटी, इन स्टेडीनेस, हु डजंट थिंक हाँ ठीक है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ ये होने से भी क्या होने वाला है, ये जीवन बहुत छोटा है, दिस लाइफ इज द शॉर्टेस्ट। By the time you come to the youthhood to understand that this is how I have got to live my life, you realize that life has come to an end. You reduce your sleeping time, you reduce your eating time, you reduce your all other activities what you do which are compulsory. You have to sleep, you have to take bath, you have to eat, you have to sleep, go for a stroll, you have to waste a couple of hours we waste on WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram and all that.
उसके बाद बचा कितना आयु, आयु बची कितनी है और उसमें से आप क्या प्राप्त कर रहे हो, इट्स टू शॉर्ट। एंड उसमें अगर इफ यू आर नॉट सिचुएटेड इन इक्वालिटी, यू आर गॉन इन ए टॉस। कहना आसान है, करना it's very easy to hear, very easy to understand, nod your head, but when it comes to application बहुत so तो दो चीज होना चाहिए व्यक्ति को, प्रिय चीज आवे या प्रिय चीज आए, असमूढ़ हो और स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि क्यों? कई लोगों के पास फास्ट मनी आ जाता है तो क्या हो जाता है, उनको क्या चढ़ता है, घमंड चढ़ता है कि नहीं? हम लोग बोलते हैं आजकल तो देखता भी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी हो गया, मतलब क्या उसका बुद्धि स्थिर नहीं। स्थिर रखो बुद्धि, बिकॉज वॉट एवर यू गेन, नेम फेम पावर मनी, वॉट एवर यू गेन, यू हैव टू लीव दिस एंड गो बैक। ये छोड़ के ही जाना है आपको, एक भी चीज नहीं लेके जा सकते हो, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड कुछ नहीं लेके जा सकते हो, सब यहीं पे रहेगा। जिस मिनट यू डाई, स्मशान भूमि में जाते ही हाँ आपका आधार कार्ड इनवैलिड हो जाता है, पैन कार्ड इनवैलिड हो जाता है, बैंक को भी इंटीमेशन पहुंच जाता है। द बैंक इज इंटीमेटेड, यू नो दैट, सो यू कांट इवन हाइड इट, इट्स सो ओपन टुडे। सो व्हाट डज दिस मीन? व्हाट आर वी रनिंग बिहाइंड? इज इट ट्रूली वर्थ इट और नॉट? दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वाकई वो चीज जिसकी कीमत हम भर रहे हैं, क्या वो चीज वाकई में उसकी लायकियत है? इज इट वर्थ इट? द टाइम एंड द एनर्जी व्हाट वी आर स्पेंडिंग बिहाइंड एक्वायरिंग मटेरियल थिंग्स, इज इट रियली वर्थ इट? बाह्य स्पर्शेषु असत आत्मनः विद्यते आत्मनि यत् सुखम से ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुख अक्षयम अश्नुते। The word akshayam is very important. Please read the translation. Such a liberated person is not attracted to the material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In the way the self-realized person enjoys the unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme. I think we'll take two verses together, then you'll understand much better. Because next is my most favorite verse. यही संस्पर्शजा भोग दुख योनि रेवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। Please someone read the translation. Okay, you can read the translation. An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contract with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and end. So the wise man does not delight in them. Does not delight in them. Very, very powerful words which explains these two verses very nicely. Such a liberated person, not attracted to material senses. जो इंद्रिय तृप्ति के भोग वाली वस्तु जो है ना, उससे जो आसक्त नहीं। That is why क्या श्लोक क्या कहता है? बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मनः, इट इज नॉट अट्रैक्टेड, वो असक्त है। विन्द्यते आत्मनि यत् सुखम, वो सुख पाता है। जो सेंस प्रेशर्स, दैट इज इंद्रिय तृप्ति वाले चीजों में सुख ढूंढता है, उसी में सबसे ज्यादा दुख मिलेगा। उसमें सुख मिलेगा नहीं। ढूंढ के देख लो, इतने सालों से ढूंढे हैं, मिला क्या? कितना टन खाना खा लिया अभी तक? हाँ, कैलकुलेट करो कितना टन खाना खाया है। 250 ग्राम्स, 750 ग्राम्स पर डे। 3 टाइम खाते हो? मैं मिनिमम का बात कर रहा हूँ, ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मिनिमम 250 ग्राम्स, 750 ग्राम्स, ओके, इंटू 365 डेज, इंटू 25, 30, 40 years. I mean, I am not having a higher age. चलो अगर बचपन में कम खाया है तो जवानी में डबल खा लिया, ओके, मतलब you compensated for it. So average it out, it goes to some tons, nowhere less than 2 to 3 tons of food we all have eaten. हम लोग सबने खाया है. Mother is calculating.
How much have consumed till now? ठीक है, तो so what we understand from this is how many tons of food we have eaten just in sense pressure. You can calculate and see, really you can calculate and see that we have eaten in tons. And अभी भी दिल मांगे खत्म हुआ, हाँ बस आज आखिरी पाव भाजी, आज आखिरी पिज्जा, आज आखिरी मोमो, कभी खाया? खाते वक्त ही डिसीजन, नेक्स्ट टाइम वो होटल में खाए। खाते वक्त ही क्या डिसीजन होता है? बहुत तीखा है, उधर खा, नेक्स्ट टाइम we'll try it. So we are always in contemplation. So what does this mean? बाह्य स्पर्शेषु, ये सब बाह्य का है, इट इज एक्सटर्नल। बाह्य मतलब क्या? एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं है। और इंटरनल खुशी कब मिलेगी? You are internally, what are you? You are a soul. And as a soul, you will get happiness only when you get spiritual things. By material things, you cannot get happiness. यही एसी अगर और 2 डिग्री कम हो जाए ना, थोड़ा देर में यही एसी अपने को तकलीफ देने लगे। अरे ठंडी लग रहा है, ठंडी, बंद करो। So these are all external happiness. This is not internal happiness. Yesterday I was telling a story about happiness, internal happiness and external happiness. ये YouTube में देखना है, देखेंगे वो देख लेना. That story is there. Hey, you are there. So it is really understanding that how we understand that internal happiness cannot be linked with external happiness. दो अलग चीजें हैं, आप उनको लिंक नहीं कर सकते. Now, we Indians have got a habit. We make fusion. You eat Indian Chinese? The Chinese will murder themselves. It's nowhere, but we concoct something and we make something which is suiting our tongue. And we call that, and we nomenclature it with something. Fine. But the bottom line is, happiness, internal happiness, totally different from external happiness. And that's what Lord is saying. कि भाई बाहर का सुख से जो he is not attached, असक्त आत्मा, असक्त मतलब जो अटैच नहीं है, वो क्या है? वो enjoy, विंध्यति मतलब he enjoys, वो सुख भोगता है. अभी आप बोलेंगे प्रभु जी ये सुख कैसा होगा, कैसे भोगने का है? How can you enjoy it? So how will you understand? Because the material happiness and spiritual happiness goes in 2 different packets. All of us put tilak. What does this tilak actually signify? वैसे आप लोग क्यों तिलक नहीं डालते? आप लोग मिला नहीं? ले मोबाइल ले लिया, सब ले लिया, भौतिक चीज सब ले लेते हैं हम लोग. आध्यात्मिक चीज लेने के लिए 200 बार सोचते हैं. तो इसका आज कारण भी बताता हूँ क्यों हम लोग तिलक पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? शरीर एक मंदिर है. वेरी गुड. क्योंकि शरीर के अंदर कौन है? परमात्मा विद्यमान है. इसके लिए शरीर एक मंदिर है और मंदिर को अलंकृत करना चाहिए. ओके, समथिंग हायर. वैष्णव मतलब अपन तिलक लगाते तो सामने वाला देखता है कि वैष्णव है. The brand name. Sorry, that's not the true. ठीक है. Whenever I go out, when I am with this tilak, people say Hare Krishna Prabhu. They give a respect, but that's not the main purpose. What's the main purpose? What is the tilak? आप लोगों ने कई तरह के तिलक देखे रहेंगे. हाँ, बोलिए. The feet of the Lord. No, that's the explanation. I am talking about what is the content. ये क्या है? Tilak means no. Tilak means, first and foremost, I told you yesterday itself, you cannot surrender to God directly. आप भगवान को डायरेक्ट सरेंडर नहीं कर सकते. इसके लिए मैंने बताया ना कल, गुहा ने क्यों खाना नहीं खाया, रामचंद्र जी ने गुहा का हाथ का खाना क्यों नहीं खाया? अच्छे बढ़िया पकवान बनाए थे, और उसने क्या बोला? तेरे पास गुरु नहीं है, तेरे पास कोई वैष्णव का संग नहीं है, मैं तेरा नहीं खाऊंगा.
घोड़ों को खिला दो, मैं पानी पी के सो जाऊंगा। कितना बड़ा झूठ बोला, मैं खाता नहीं हूँ बोला उसको, और जाके शबरी की बेर खाए। शबरी की बेर खाए तो क्यों? शबरी के पास गुरु था, शबरी हैड ए गुरु, Matanga Rishi was the guru of Shabri. So he said, yes, now I accept your devotion. Whereas when Guha was trying to serve Lord directly, that time what did Lord say? Sorry, आज मैं नहीं खा सकता, आज उपवास है, आप एक काम करो, ये पूरा खाना जो है ना घोड़ों को खिला, मैं पानी पी के सोचा। So Lord is like that, very clear. He doesn't accept things as it is. So first, कई हम लोग ने कई जगह पे देखा रहेगा, राधा कुंड का जो रज रहता है उसको तिलक में, that is like a mud, you know, like small sand. This is available in Radha Kund. This what we wear is gopi chula. This is the dust of the lotus feet of the gopis from Dwarka. So what we connect ourselves through devotees, we connect ourselves to God. We are not qualified to connect ourselves directly God. हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि हम भगवान से डायरेक्टली जुड़ पाए। भक्तों के मार्ग से, भक्तों के माध्यम से ही हम जुड़ सकते। इसके लिए पहला चीज क्या करते हैं? तिलक लगाते कि भाई क्यों भगवान इस धरती पे आए, क्यों मालूम? माटी खाने के लिए। सबको पता है माटी खाने का लीला, एवरीवन नोस। भगवान ने माटी खाया, मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड। भगवान ने देखा कि ये जो तो मेरे भक्तों का पैरों का रज है, चलो मैं ले लेता हूं। उन्होंने लेके खाया, तो भगवान खुद भक्तों का वो रज लेके खाने को तैयार थे। देयर इज ए हिडन रीजन फॉर ब्रह्म विमोहन लीला। सबको मालूम है ब्रह्म विमोहन लीला, सबको पता है ना क्या है? बताए। हाँ, ग्वाल बालों और काउस को, बछड़ों को, सबको लेके चले गए। क्यों लेके? हाँ, ब्रह्मा को घमंड हो गया। ठीक, वो तो बाहरी एक अंतरंग कारण उसका क्या है? भगवान कहते हैं जैसे मैंने थोड़ा रज खाया, मधुमंगल ने जाके बोला, यशोदा मैया आपके बेटे ने तो इतना मट्टी खा लिया। तभी तो पूरा ब्रह्मांड दिखा ना मुंह में, पूरा मट्टी खा। बोला आज भी जाओ ब्रह्मांड घाट, वहां पे मट्टी का लड्डू मिलता है, आज भी प्रसाद है। लिटरली शुड आल्सो पुट दैट रज, थोड़ा सा मुंह में डाल लेंगे। तो बोला, भगवान बोले मैं इतना सा मट्टी खाया, लोगों ने इतना हो हल्ला कर दिया, मेरा घाटी नाम हो गया ब्रह्मांड का, मुझे तो और रज लेना है भक्तों का, तो मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, ये सारे कोई कंप्लेंट करने वाला ही नहीं रहेगा, सबको मैं भेज देता हूं, सबको मैं भेज देता हूं, तो कोई कंप्लेंट करेगा ही नहीं कि मैं ही होऊंगा, कि आई हैव ओनली एक्सपैंडेड इनटू द काउस, काफ्स, माय फ्रेंड्स, एवरीथिंग आई विल बी द सेम थिंग। तो उन्होंने अपने आप को सब में एक्सपैंड कर लिया और गैया बनकर इतना रज खाया घास के साथ, भगवान भी। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इज, don't try to find happiness in material things, try to find happiness in spiritual things, but that can be achieved only when you get connected through a devotee of God, through a guru. Directly if one says, oh I know मुझे भगवान के पास जाना है, हटो सब लोग हटो, I am directly coming, sorry। एक कंपनी से एक प्रोडक्ट भी लेना है, अगर समझो आपको एक गाड़ी लेनी, डायरेक्टली कंपनी से ले सकते हो? No, I know, I can't. I just call up the company and I'll get the car directly from the thing. You can't. You need to have a chain. OB dealer, sub dealer, so many chains are there. Distributors are there. Then super distributor. ये वो. Even एक बिस्किट का पुड़िया भी आपको 10 हाथ बदल के आता है, तभी आप ले पाते हो। भगवान को डायरेक्टली पालोगे? Is it possible? One biscuit packet also goes through 100, super stockist, distributor, then shopkeeper. So many chains are required even to achieve one packet of biscuit. But to achieve God, people think it's my flip of an hand. I can just get it. No, it's not possible. हो ही नहीं सकता।
तो दैट इज वाई जब तक आप इंद्रिय तृप्ति में आप रचे पचे रहोगे, आपको ये सुख, ये तृप्ति आपको कभी नहीं मिल पाएगी. प्लीज डोंट थिंक आई मेक ए भेलपुरी ऑफ इट. व्हाट इज भेलपुरी? थोड़ा तीखा चटनी, थोड़ा मीठा चटनी. कभी कभी किसी को मीठा थोड़ा अच्छा लगता है तो किसी को तीखा. बट don't think you can live a material life with little material enjoyment and with spiritual enjoyment, and I'll make a mix of it and I'll be happy. It's not possible. A person who is spiritually enlightened, he will not get happiness in Goa. If I send Jigar to Goa, he cannot be happy. Guaranteed. But everyone will be drinking. Because their goal of happiness will be different. उनको 4 चीजों में आनंद मिलेगा. मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स एंड गैम्बलिंग. इन 4 चीजों में ही उनको आनंद मिलता है. और ये 4 चीजों में आपको आनंद नहीं है, दुख है. दैट इज वाई लॉर्ड सेज यही संस्पर्शजा भोगा. इससे आपको क्या मिलता है? दुख योनि रेवते. दुख क्यों? अभी भी दुख है, आगे भी दुख है, अगले जन्म में भी दुख है. क्यों? कर्म का गठरी बांध लिया आपने, बुरे कर्म का गठरी बांध लिया. दूसरा बात, जो आपने यहां पे सुख भोगा, ऑल दोज हू चू टोबैको. पहले दिन कैंसर आता है, पहले सिगरेट पे कैंसर आता है, पहले पेग में लिवर सिरोसिस आती है. इट ऑल हैपेंस स्लोली. देयर आर स्लो किलर्स, स्लो पॉइजन. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? दुख योनि रेवते. ये इसमें सिर्फ आपको दुख मिलता है. और इन आदतों से घर बर्बाद होता है. कौन सा घर सुखी हो सकता है? If the husband is a drunkard and wife is having an illicit affair, so many murders today are happening, so many wrong things are happening in the society. For what? Only for sense gratification. Only for इंद्रिय तृप्तियों के लिए ये सब गलत कार्य होते हैं. मांस भक्षण. People talk about I am a very loving person. इंटरव्यू में सब डायलॉग देते हैं ना, सब आई एम वेरी नाइस पीस लविंग पर्सन. जो प्लेट में जो मछली पड़ा है वो नॉट अ लवेबल पर्सन है. जो मुर्गी पड़ा है वो लवेबल पर्सन नहीं है. आई एम वेरी नाइस, आई लव माई पेट्स. हाउ इज इट पॉसिबल? यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर ओन स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट को एक ही आंसर हो सकता है. यू कॉन्ट हैव ड्युअलिटीज. एंड if now one may argue that that lion is eating a sheep or a goat, if I eat, you are saying it's a problem. That उसके लिए ऑप्शन नहीं है. He doesn't roast it and cook it and eat it. He doesn't put garam masala and eat it. He eats it raw, uncooked. That's what he's been made for. You have not been made for that. आप उसके लिए बने नहीं. क्या आप उसके लिए बने हो ताकि आप बैठ के पूरा जीवन मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे इस दुनिया में करना क्या है और मृत्यु के बाद मुझे कहां जाना है, इन प्रश्नों का सवाल ढूंढना है, इन जवाब ढूंढना है. या वो सब छोड़ो. ड्रिंक, ईट, मेक मेरी, डू नॉनसेंस. दिस दैट द गोल ऑफ आवर लाइफ. देयर इज नथिंग रॉन्ग. बट द प्रॉब्लम इज दोनों में से एक ही चीज कर सकोगे, दोनों चीज नहीं कर पाओगे. दैट इज द प्रॉब्लम. either you can do this. अगर कोई बच्चा बोलेगा ना, नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल, आई डोंट नो, stalwarts today, full year played and the exam got 99. It's not possible, right? Either it has to be you seriously study, you may be intelligent also, but you have to थोड़ा बहुत तो वक्त आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको 90%, 80% जो भी हो वो मार्क्स मिलेगा. अब साल भर खेलोगे, परीक्षा का पहला दिन तक खेलते रहोगे और परीक्षा का दिन 99% नहीं आता. उसी तरह जीवन भर अगर आपने अपना समय व्यर्थ घुमा दिया इन 4 चीजों में, या इन 4 चीजों को का सुख पाने के चक्कर में आपने भक्ति की नहीं, यू डिड नॉट डू डिवोशन एट ऑल, आर यू गोइंग टू गेट? इम्पॉसिबल. यू कैन नॉट गेट. पर भगवान एक कंडीशन लगाते हैं. भगवान कहते हैं मृत्यु के समय भी अगर व्यक्ति का सुधर जाता है तो भगवान को मालूम है होने वाला नहीं.
He proved it. जब वो शांति दूत बन के गए थे महाभारत में, लास्ट चांस, विराट रूप दिखाया, और क्या दिखाया? हाँ, दुर्योधन को विराट रूप भी दिखा दिया, अभी भी सुधर जा। तुमको मालूम है एक सुधरने वाला नहीं है। अगर मैं खुद भी शांति दूत बन के जाऊं तो भी सुधरने वाला नहीं। सो दैट इज आवर सिचुएशन। अगर जीवन भर हम इसी कार्यों में, इसी चित्तों में, इन्हीं इंद्रिय तृप्तियों की चीजों में अगर हम लिप्त रहे, और उसके लिए हमारा बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग हमारा क्या है? इंद्रिय तृप्ति। टेल मी ऑनेस्टली, यहाँ पे एक बॉल ऑफ खिचड़ी रखा है और एक बॉल आमरस रखा है। ये क्या लग रहा है प्रभु जी? अभी खा ले तो प्रभु जी के सामने खिचड़ी, बाहर जाके आमरस का। So what does this mean? By default, we are being. You know, there is a very nice question I used to ask earlier in my initial classes. I'm talking of 2016 and all. You are hungry. You are thirsty. Okay, you are thirsty. I got 3 cups, all full of water. Okay, 1 paper cup water, 1 cup of steel, a glass of steel, and 1 glass of silver. All having water. Which one will you choose by default? चलो माता जी आप कौन सा लेंगे? हाँ, इतना सोचने का टाइम नहीं है। गैस मिले तो अभी ये डाउट है, इस प्रश्न में डाउट है आपको। आई एम ऑलरेडी क्लियरिफाइंग दिस सिचुएशन। यू आर डाइंग आउट ऑफ थर्स्ट, बट स्टिल in the heart of heart, ये है तो फिर why should I go for the paper glass? I'll go for the silver glass. So that's what. प्यास क्या चांदी बुझा रहा है या पानी बुझा रहा है? Still we are mentally, you know, that's what we are conditioned for. कि जन्मों जन्मों से हमने वही किया, हर जन्म में हमने यही किया है कि इंद्रिय तृप्ति करें। I'm not saying it's bad. Please don't misunderstand me or take me in the other end. कहने का मेरा भावार्थ क्या है कि हमारे अंदर वो एक डिफॉल्ट सेटिंग है कि भाई हर चीज को किस तरह से, हर चीज को अच्छी तरह से भोगा जाए। You see, you open the TV and see the ads, right from a commode ad. Everything is bound to make your life more enjoyable. Toilet, you have to pass. Motion, you have to pass. The toilet is not going to enhance your body structure or your body process. But the material world is made in such a way, everything is shown in a way in which your life is going to be super enjoyable. Going to be super enjoyable. No, sorry. Life can never be enjoyable. आपका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता है चीजों से कोई। दैट इज व्हाई लॉर्ड इज सेइंग, यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि रेवते, आदि अंत बनते कौन थे। द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज इसका एक आदि भी है और एक अंत भी है, एक स्टार्टिंग भी है, एंड भी है। ऑलवेज आई गिव द एग्जांपल ऑफ अ मूवी। यू गो फॉर अ मूवी, टेंशन में क्या करते हो? सब टेंशन निकाल के बाजू में गेट में रख दिया। देन यू गो इनसाइड द थिएटर, you go inside the theater to watch the movie. Nice, AC is there, popcorns are popping in your mouth, and you are sitting in front of the big screen. And then आपने क्या किया? वो हीरोइन को टेंशन आपने वो जो रोल पे है, जो सासू माँ के रोल में, हाँ वो सासू माँ ही हूँ। She will relate. I am that सासू माँ। बहू बोली ये मेरी सासू माँ जैसी ये भी सता रही है। तो बहू says yes, I am here. Everyone will relate themselves. The hero thinks, no, I am not dancing. It is not that hero is dancing with the heroine. It is me who is dancing with the heroine. And the heroine thinks, damn, she is not. It is not that lady who is dancing with the hero. It is I who is dancing with the. That is my solution. ठीक है, सब पिक्चर देख लिया, एंड में एंड में फाइटिंग इज आल्सो गोइंग ऑन। यू से मेरे तरफ से भी 2 और, एंड देन द मूवी इज ओवर, यू कम आउट, they walk. You just left that tension back. क्या बदला? The boss बदला नहीं ना, माँ सासू माँ बदला ना, पेरेंट्स नहीं बदले, बॉस नहीं बदला, दोस्त नहीं बदले, दुश्मन नहीं बदले, सब ऐसे के वैसे।
only for a few hours. So what does this mean? This happiness was Adi Anta. This has a beginning and an end. ऐसी खुशी क्या काम की? ऐसी खुशी क्या काम की जिसकी एक शुरुआत हो और अंत हो जाए? अच्छा सीरियल है, अच्छा पिक्चर है, जो भी कुछ भी हो, अच्छा खाना है, कितना देर रहेगा? Few minutes on the lips, few hours in the stomach. It has to go. If it doesn't go, you have pills to throw it out. So what is the use of such happiness? That's but हम लोग आज भी उसी को हमारा जीवन का लक्ष्य बना के घूम रहे हैं. That is why Lord is saying, "अरे बाबा, आदि अंतवंत तेसु कौन थी है? ना तेसु रमते बुधा. बुधा मतलब an intelligent man. An intelligent person is one जो इन चीजों में आनंद नहीं लेगा, कि उसको पता है ये आनंद नहीं है. इसके लिए फर्स्ट वर्स, सी दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग बोथ द वर्सेस टुगेदर. द अर्लियर वर्स इज सेइंग बाहर का ये सुख, ये अंदर का सुख नहीं है. सेकेंड वर्स शोज ये जो सुख जिसको आप सुख समझते हो, ये स्टार्टिंग भी है उसका अंत भी है. सपोज बढ़िया खाना है, खा लो, अच्छा 2 रोटी खाया, 4 रोटी खाया, 6 रोटी खा लिया, 8, 9, चलो एक्स्ट्रा वंस मोर. उसके बाद आई विल वॉमिट, आई कैन नॉट ईट. मन चाह रहा है, क्या मन रुक गया वहां पे? अरे कमीना पेट, इतना ही. आई कैन टेक ओनली दिस मच. हैड आई गॉट अ बिगर स्टमक आई कुड हैव ईटन मोर. और बाजू वाले लेते हो और दुख दर्द हो. हाँ, it means more. He is eating, see, I am not able to eat. That's his problem. What's your problem? And he's, you know, that's how we are mentally developed. Because our body has not been made for enjoyment. हमारा शरीर बना है तपस्या के लिए. तपस्या करो. तपस्या मतलब एकादशी फॉलो करो. एकादशी मतलब ईट, ठीक है, जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, गोली खा रहे हैं, फ्रूट्स खाओ. बहुत गया तो एक टाइम एकादशी का भोजन करो, एक टाइम फल फूल खाओ. एंड स्किप द पुल दैट डे. जो यंग है, अभी आ रहा है 18 को निर्जला, पांडव निर्जला एकादशी. मेंटली अभी से प्रिपेयर कर लो अपने आप को. एक दिन पानी नहीं पीना है. माय गॉड, वन डे प्रभु जी, यू आर आस्किंग माय किडनीज. Don't worry. I was like you all, so I was also thinking, my God, one day without water. Food तो ठीक है, चलो पहले तो एकादशी, बाकी एकादशी तो फ्रूट जूस, फ्रूट, साबुदाना खिचड़ी, श्रीखंड. I had a nice menu. Nice. Only Ekadashi means change of menu. That's all. All 4 times. So I used to have that. And ठीक है, that's the initial stage. But then you grow up in life. Then I was wondering, my God, one day I have to stay without water. And that time I had got a leg fracture. गिर गया था, तो पैर में लग गया. So I was in the house and watching TV. Suddenly there was an earthquake in Nepal. I must have heard of 2015-16 के आसपास एक बड़ा earthquake आया था नेपाल. And one person came out of the debris after 48 hours. जिंदा निकला. All big breaking news, and all channels start shouting. Poor fellow, उसका कितना हड्डी टूटा मालूम नहीं, but they are shouting breaking news. That eye struck me. Oh, suppose if I was in that place, 48 hours, who would have given me what fruit juice, what watermelon juice, or what would I have ordered? But he has survived for 48 hours. I can't stay for 24 hours. That was the impetus which I got. Let me be very honest. And that is how I started doing my Nirjala Pandav Ekadashi. Because जो 24 एकादशी नहीं कर पाते हैं, there are total 24 एकादशी for a person in the entire year. जो 24 नहीं कर पाते, कम से कम वो एक एकादशी करेगा तो उसको 24 एकादशी का फल मिलेगा. तो फल बोला तो प्रभु जी क्या क्या बेनिफिट्स है, मैनिफेस्टो बताओ. आजकल मैनिफेस्टो से बात होता है ना, सब कुछ क्या क्या खटाखट क्या आएगा हमारा अकाउंट में, बताओ आपको. तो क्या बताएंगे?
क्या आएगा आपके अकाउंट में? कुछ नहीं आएगा। भक्ति के अकाउंट में आएगा, और भक्ति का अकाउंट कैन नॉट बी रिडीम्ड इन द मटेरियल प्लेटफॉर्म। प्लीज, वॉट एवर यू गेट इन द मटेरियल अकाउंट यू कैन रिडीम। आपका अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, आप फोन खरीदो, टीवी खरीदो, गाड़ी खरीदो, जो करना है खरीदो, पर आपका स्पिरिचुअल अकाउंट में अगर कुछ पड़ा है तो आप उसका क्या यूज कर सकते हैं? व्हाट कैन यू यूज, वेयर कैन यू यूज, एंड हाउ विल यूज? यू कांट, इट्स नॉट पॉसिबल। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर तपस्या, एंड एनिमल लाइफ इज मेंट फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, विच इज कॉमन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, जानवर भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं, और वो भी अपना बचाव कर लेते हैं, और हम भी अपना बचाव किसी न किसी तरीके से कर ही लेते हैं। तो फिर हमें इंसान क्यों कहा जाए? अगर हम भक्ति कर पाए, क्योंकि इंसान का एक योनि है जो तपस्या कर सकता है, इंसान का एक ही योनि है जो भक्ति कर सकता है, और किसी योनि में ना आप तपस्या कर सकते हो ना भक्ति कर सकते हो। बाकी सब योनि में आपको आपके धर्म के हिसाब से या आपके कर्म के हिसाब से आपको जीना पड़ेगा। योर नो अदर चॉइस। दैट इज व्हाई लॉर्ड इज सेइंग एन इंटेलिजेंट पर्सन इज वन हु डजंट पार्टेक इन मटेरियल हैप्पीनेसेस, और मटेरियल भी नहीं, सेंसुअल प्लेजर्स। सेंसुअल प्लेजर्स कितने तरह के हैं प्रभु? कितने तरह के सेंसुअल प्लेजर्स? ओके, इसके अलावा और कोई सेंसुअल प्लेजर है? Very important, people many times forget this. Remember? Rule 6. Sixth one, sir. Mind. Mind. हाँ. हाँ, that is 2.5. That is 2.5. That is different. That's what Shastra says. The other type of sense pleasure in which we are always involved is show off, egoism, and power post nonsense. ये सब जो है ना, ये दिमागी है, ये कोई ये यहाँ का जिभा में नहीं। आप पावर पोस्ट मिलने से आपका जिभा में कुछ टेस्ट आता है? कान का, नाक में, आंख में कुछ आता है? नहीं। बट मुझे साफ करके बुलाते हैं, मुझे बाबा जी करके बुलाते हैं, नो, लाइक यू हैव दैट ईगो। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सेंस प्लेजर ओनली। दैट इज अ सटल सेंस प्लेजर, दिस इज अ ग्रॉस सेंस प्लेजर। जैसे आपने गुलाब जामुन मुंह में डाला तो आपको ग्रॉस सेंस प्लेजर मिला, वो इतना मीठा है, इतना नरम है, इतना कड़क है, जो भी हो, you are getting that feeling. Whereas there is something called as subtle, and subtle में name, fame, adoration, and उस चक्कर में व्यक्ति कितना कर्म करता है, कितना बुरे कर्मों में अटक जाता है। People expose their body, they expose their vicious ideas and all that. This is all a reason of mental sense pleasure. ये भी एक तरह का sense pleasure। Many people tend to forget this, कि ये ऐसा कोई सेंस प्लेजर यहाँ है which is not external but that is internal। इसके लिए तो कई बार हम लोग महंगा घड़ी, महंगा नेकलेस पहन के क्यों घूम जाते हैं पार्टियों में? What is the purpose? Why you want a very unique sari or a unique dress, a unique shoe, a unique purse? Why? जब तक बाजू वाला जलेगा नहीं, you will not feel happy. So are you happy? Many times you take, let's say, a very costly mobile and you flaunt it in front of them. Like, oh, I got this, I got this, yeah, I got this ring. People, दुकान वाला था, एक लेडी गई दुकान में, ये सब्जी कैसी थी, ये सब्जी कैसी थी, दुकान वाला देख रहा, ओह अच्छा ये रिंग दिखा रही है, डायमंड, ये कैसा दिया, तो इसने अपना कड़ा आगे किया, ये सब्जी ऐसा दिया, ये सब्जी इतने का दिया। So what does this mean? We are busy showing our power, our greatness, but actually what power, what greatness we are having? Zero.
बट वी आर स्टिल हैप्पी एंड वी थिंक दैट इज हैप्पीनेस. आज मैंने उसका नाक नीचा कर दिया, उसको उसका नाक काट दिया, जो भी हो, दैट उसमें एक अलग आनंद मिलता है. Though I don't know, it's a different. You need a different measuring scale to measure that. It can't be measured on a normal scale. But what does it mean? You are not focused on your goal of life. आपके जीवन के लक्ष्य से आप भटक गए. कोई अगर इतना मेहनत करे, इतना मेहनत करे, इतना मेहनत करे कि ताकि मेरी कोठी तेरी कोठी से बड़ी हो और पूरी आयु उसमें निकल जाए, पूरा जीवन उसका निकल जाए. इज ही सक्सेसफुल इन द एंड ऑफ द लाइफ और इज ही अ लूजर एट द एंड ऑफ द लाइफ? द मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू इज अ ग्रेट सक्सेसफुल मैन. I have received many videos about that KFC owner who started at his late age and he is successful. What success? All the chickens whatever he has killed, he has to pay help. And last but not the least, all the money which he has earned, he has to leave and go. He cannot take it. But the karma reactions he has to carry. But it is better that he does devotional service this life. Whether he does or not, why should we not do it? हम लोग को करना चाहिए भक्ति, ताकि हम भक्ति करके हम back to God जा सकें. और भक्ति करने के लिए सबसे आसान और जरूरी तरीका कौन सा है? सत्संग. वेरी गुड. और भगवान का नाम लेना इजीएस्ट है ना, इसके लिए लोग नहीं करते. अगर डॉक्टर, यू गो टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर साहब, many patients come to you, will be coming to you, and very simple, not a major complication. You just write one antacid goli, you will not be happy. अच्छा डॉक्टर नहीं, well जिसका धन 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 जो कुछ काम का नहीं, जिसका डिजीज का सर डिजीज है ही नहीं तो क्या देंगे, बट यू गिव हिम महंगा महंगा दवा दिया, वेरी इफेक्टिव है ना. यू मस्ट हैव फेस सच पीपल. डोंट वरी, इन भक्ति में भी वही हाल है. मैं सिंपल प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता हूं. क्या लिख के देता हूं? भगवान का नाम लो. बेकार, प्रभु जी का आइडिया बेकार. मैं हायर बोल लग गया. हिमालय में एक टांग पे खड़े रहोगे? हाँ, हिमालय पर्वत में जाके एक टांग पे खड़े रहोगे क्या? इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस युग. यहाँ पे 10 मिनट खड़ा रहते पाँव दुखने लगता है. हिमालय में जाएगा एक टाइम नहीं, उसमें से भगवान मिलेंगे. अरे भगवान इसमें से मिलेंगे, बहुत सिंपल है. भगवान इतने सिंपल है कि ही कैन बी अटेन्ड वेरी इजीली. टेल यू वन स्मॉल स्टोरी अबाउट गेटिंग गॉड. एक बार सत्यभामा को जाके नारद मुनि ने चाबी लगाया. नारद मुनि का ऐसे काम रहता है, दैट इज हिज पर्पस इज ईगो कम का. तो नारद ने जाके सत्यभामा को बोला, देखो तुमको है ना भगवान एक जन्म में पति बन के मिले, तुमको 7 जन्म पति चाहिए? Want him all 7 births, you want God as your husband? तो सत्यभामा यस यस यस, I'm interested. उसके लिए एक ही तरीका है, तुम है ना इनका दान करो. बेस्ट इज यू डोनेट हिम. डोनेट किसको? डोनेट क्यों? डोनेट डोनेट हिम. 7 जन्मों तक भगवान ने आपको पति मिले. अभी एक जन्म तो ऐसे भी आधा कट गया, अब दे दो, ठीक है. किसको? तो देखो, अभी ब्राह्मण को तो देना चाहिए, मगर मैं सन्यासी, और वो भी आई एम द शिरोमणि. विरक्तों में मैं शिरोमणि हूं. आई एम द टॉप मोस्ट डिटैच्ड पर्सन. बट फिर भी अगर भगवान दान में मिल रहा है तो मैं लेने को तैयार. और पात्र भी हूं, मैं ब्राह्मण भी हूं, मुझे दे दो. ठीक दिया. तो ब्रह्मा जी ने बोला, इसने बोला, नारद मुनि ने बोला, रुको रुको, तुम यहां से वहां तक जाओगी, क्योंकि संकल्प लेना पड़ता है ना, पानी लेके दान देना पड़ता है. तो संकल्प के लिए वहां तक जाओगी, तुम्हारा मन बदल गया तो? हाँ, कई बार लोग आते हैं मंदिर में, भगवान को 100 रुपया चढ़ाते हैं, जब तक जेब में पैर हाथ जाता है ना 50%. आज ना दिवाली ना दशहरा कुछ भी नहीं, काय के लिए डालो, ऊपर चला ऊपर चला जाएगा. इंसान का फितरत है देने का, कभी भी मन घूम सकता. तो
उधर तक मेरा कमंडल में पानी, इधर ही संकल्प कर लो, अभी ऑन द स्पॉट संकल्प कर। तो उसने बोला ठीक है, तो हाथ में लिया, संकल्प किया कि आपसे मेरे पति, आपके थैंक यू, आपका दान स्वीकार किया मैंने। तो स्वीकार करना भी जरूरी है ना, इट्स लाइक देना बड़ी बात नहीं है, स्वीकार करना है, ब्राह्मण स्वीकार करना भी चाहिए। स्वीकार कर लिया, आई हैव एक्सेप्टेड इट। तो तुरंत नारद मुनि ने अपना तंबूरा भगवान के हाथ में दिया, चलो फिर दान में दिया गाय है तो गाय को लेके जाएगा ना आदमी, ऐसे है ना, कोई भी चीज दान में दे दो, वो दान जिसको दान दिया वो लेके जाएगा। ये स्टार्टेड मूविंग विद इट। इमीडिएटली सत्यभामा से रुको, ऐसा थोड़ी है, दान दिया मतलब आई हैव गिवन हिम बट ही इज माय हस्बैंड, यू कैन नॉट टेक हिम लाइक दैट। सॉरी, once you have given, you have no rights. Now I will take him wherever I want. Lord was also very happy to go with Rivoti. पत्नी से तो दूर ना, चलो अच्छा है। वो भी खुश होके गए। So immediately big argument and questions and this and that. Then other रानीज they came and fell at his feet. अरे आप ऐसा मत करो, हमारे पति को लेके मत जाओ। मैं क्या करूं, तुम्हारा अगर मैं दान नहीं लेके जाऊंगा तो तुमको पाप, और लेके जाऊंगा तो भी तुमको प्रॉब्लम, मैं करूं क्या? After a big argument, finally it zeroed down to one point. देखो, आप शास्त्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूल्स का एक तोड़ रहता है ना, हर मुसीबत का तोड़ रहता है, तो उसका कोई प्रायश्चित रहेगा, प्रायश्चित बता दो। तो नारद मुनि बोले ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है, बट ठीक है, आप लोग इतना अनुरोध करते हो तो मैं एक प्रायश्चित बता सकता हूँ। प्रायश्चित ये है कि इनके वजन का सोना देना पड़ेगा। सत्यभामा से दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैं बड़ी बाप की औलाद हूं। मेरा पापा के पास क्या था? समंदक मणि था। समंदक मणि 8 बार सोना रोज देता था, तो मेरे पास तो सोने का किचन वेयर, सोने का वार्डरोब, सोने का एवरीथिंग सोने का, मेरे पास सोने का कमी नहीं। और भगवान भी ऐसे हल्के फुल्के, ही इज नॉट ओवरवेट लाइक मेंटेन, goes to the gym, maintains himself because he has to maintain the whole world, so he is very maintained. Immediately भगवान को बिठा दिया एक तराजू पे, दूसरा उसमें बड़ा सोने का भांडा, कब ये कबोर्ड बहुत सट डाला, तो कुछ हिलने का चांस ही नहीं। तो सत्यभामा से लेके जाओ ना, बस हो गया। He also got tired, इतना सामान चढ़ा, काटा थोड़ा तो हिलना चाहिए ना, एटलीस्ट इक्वल ना सही, थोड़ा तो ऊपर आने का चांस। एकदम चिपका हुआ है आपका भगवान वाला पल्ला, तो एकदम चिपका हुआ, मैं कैसे लेके जाऊं? परेशान। फिर फाइनली क्वेश्चन, आप कुछ तो और तरीका निकालो। यू आस्क योर अदर वाइफ्स आल्सो टू पुट देयर गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ऑल दैट। तो बाकी के वाइफ्स ने भी आके, बस लॉर्ड हैड 16,108 वाइफ्स, तो लोगों ने अपने अपने डाले, फिर भी पल्ला हिल नहीं रहा। तो गए रुक्मिणी के पास, बोला जाओ रुक्मिणी के पास पूछो, उसके पास कुछ रहेगा। तो रुक्मिणी ने बोला मैं कुछ नहीं दे सकती। लक्ष्मी देवी, Rukmini is none other than Lakshmi Devi, but she said I can't give anything because I know nothing material can equal God. कोई भी भौतिक चीज भगवान के बराबरी नहीं कर सकती। तो क्या करें? उन्होंने बोल दिया ठीक है, एक काम करो, तुलसी का एक पत्ता और उसमें ना कृष्ण का नाम लिखो और उधर रखो। जैसे रखा, फिंग भगवान ऊपर, भगवान का पल्ला ऊपर, और पूरा ये साइड ऑफ दिस साइड पैन ऑफ द बैलेंस केम डाउन। नारद मुनि आया, देखा, अब मैं क्या करूंगा? इतना तुलसी के वजन से आपका पति हिल जाते हैं, इतना हल्का फुल्का आदमी रख के, मैं ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, दोनों रखो तुम। उन्होंने उठाया, तुलसी उठाया और खा गए। क्यों? भगवान का नाम जो मिल गया तो मुझे ये भौतिक चीजों की क्या जरूरत। दिस अप्लाइज टू अस। हम लोग भी भौतिक चीजों के चक्कर में घूम रहे हैं, पर भगवान तो भौतिक चीजों के कितना भी वजन कर लो, अंबानी, एलोन मस्क और क्या है कौन कौन है, बिल गेट्स, अडानी, सबका पैसा धन उठा के डाल दो एक पल्ले में और दूसरे पल्ले में भगवान को बिठाओ, वो पल्ला हिलने वाला नहीं। Why only them? When our money also together put, God cannot be purchased. God can be won over by only one thing, by His holy name. And this only Lakshmi Devi knew. Because Rukmini Devi was none other than Lakshmi Devi. She said, yes,
हमको भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान का नाम प्राप्त किया तो भगवान अपने आप प्राप्त हो गए. He surrendered to the holy name. So the minute you take the holy name, you get God free. It's free. But the only thing is, हमको अभी तक विश्वास है. So this is my humble request to all of you all is, भगवान का नाम प्रेम से, मन से, ध्यान से जरूर लें. वही एक चीज है जो आपको भवसागर से पार कराएगा. बाकी चीजें जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं जरूरी नहीं है, बट दे आर ऑल फैक्टर्स ऑफ लाइफ, दे आर नॉट लाइफ. वो जीवन नहीं है, जीवन के कुछ अंश हैं, ठीक है, जरूरी है. जैसे खाने में थोड़ा तीखा, थोड़ा मिर्ची, थोड़ा तेल सब चाहिए, बट स्वाद नमक से आता है. तो भगवान नमक के जैसे हैं. सब रहे और भगवान न रहे तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है. आप बोलेंगे अपने प्रभु जी सिर्फ भगवान रहेंगे तो चलेगा, बाकी चीज नहीं रहेगा तो चलेगा? अगर भगवान रहेंगे ना, बाकी चीज अपने आप आएगा. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो वेरी सून, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल. ओके, so this I like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask. Fast.